Good morning, student. In the previous video, we already completed surface area and volume of the cube, cuboid, and surface area and volume of the cylinder. Now we are going to start the next topic of this lesson, that is right circular cone. The cap of Joker, Joker का cap, ice cream cone. These are the example of the right circular cone. Right circular, the meaning of right circular we already discussed. Means the height is perpendicular to the base. Height कैसी रहेगी? Base के ऊपर रहेगी perpendicular. That is called as a right circular. Means circular base पे height रहेगी perpendicular. That is called as a right circular और cone. Cone के example हमने यहाँ पे discuss किए. Means कौन सा cone का example? That is अब पहला दिया आपने एग्जांपल द कैप ऑफ जोकर एंड कोन यानी वो आइसक्रीम कोन. ओके, नाउ इट हैज टू सरफेसेस ओनली. द वन इज अ कर्व सरफेस एंड अनदर इज द सर्कुलर बेस. ओके, इट हैज वन वर्टेक्स, टू सरफेसेस. तो सिंपल यहां पे ले लेते हैं. ये जो लाइन दिख रही है आपको, दिस इज कॉल्ड एज अ स्लैंट हाइट L. This is called as a perpendicular height H, and this is of your radius of the base. So L is the slant height. Okay. H, it is perpendicular height, or we can say that simply height. यदि उन्होंने simply height बोला तो H, slant height बोला तो L. And R is the radius of the base. Okay, it has two surfaces, that is one is the curved surface and the second is the circular base. So its curved surface area is equals to pi RL. 10th स्टैंडर्ड में आपको पता चलेगा कि ये कर्व सरफेस एरिया पाई RL क्यों है, या फिर मैं भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि 10th में पढ़ाते हैं तो एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं. ओके, इट इज रिलेटेड विद द एरिया ऑफ द सेक्टर. ये एरिया ऑफ सेक्टर से रिलेटेड है जो कि आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे. ओके, सो इट्स एरिया इज पाई RL, कर्व सरफेस एरिया. इट्स टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस का एरिया. Its curved surface area is pi RL and the area of the base, इसका base है circular, it is pi R square. तो pi R will be common, R plus L. ये हो गया इसका फॉर्मूला. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया. और इसका वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम यहां पे लिख लेता हूं मैं. वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम रहेगा, ये वॉल्यूम हम लोग बेस इंटू हाइट नहीं ले सकते. वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ये रहेगा 1/3 पाई R स्क्वायर H. ये जो पाई R स्क्वायर H है, ये आपने कहीं तो भी पढ़ा है. पाई R स्क्वायर H इट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, और ये सिलेंडर का 1/3 पार्ट है. मींस एक आइसक्रीम कोन, एक आइसक्रीम सिलेंडर में यदि सिलेंड्रिकल कोन है, सिलेंड्रिकल आइसक्रीम पॉट है, तो उसके उसी के बेस के हिसाब से यदि कोन कंसीडर करेंगे तो 3 कोन बनेंगे. यानी एक सिलेंड्रिकल पॉट में 3 कोन जितना आइसक्रीम आता है, तो सबसे ज्यादा आइसक्रीम किसमें रहेंगी? सिलेंडर में रहेंगी, एक कोन में नहीं रहेगी. ओके, so that's we apply the cone, क्योंकि आइसक्रीम कम आती है उसमें. तो यहां पे these are the formula. L is the slant height, H is the perpendicular height, and R with the radius of the base. Curved surface area is pi RL, total surface area pi R plus L, and the volume is 1/3 pi R square H. One more relation is there, and that relation is between R, H and L. If I consider this is of your right angle, because height is perpendicular to the base. As this is of your AOB, so AOB is a right angle triangle, therefore we can write as
L square is equals to R square plus H square। तो इस रिलेशन से यदि आपके पास में परपेंडिकुलर हाइट और रेडियस है तो आप स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं, आपके पास में स्लैंट हाइट और रेडियस है तो आप परपेंडिकुलर हाइट निकाल सकते हैं। इसी के ऊपर हम लोग कुछ एग्जांपल लिए हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 to 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 13.3। ओके, 13.3 से some example we will take here। The first example is diameter of the base of the cone is 10.5 centimeter। So diameter यदि B given है 10.5 centimeter, तो रेडियस बन गया आपका 10.5 divided by 2, that is of equals to 5.25 centimeter। ये रेडियस बन गया। And its slant height is H, means slant height L। So L is equals to 10 centimeter। Find curved surface area and total surface area। कर्व सरफेस एरिया के लिए कर्व सरफेस का फॉर्मूला लगाएंगे एंड टोटल सरफेस के लिए टोटल सरफेस का फॉर्मूला। तो यहां पे सबसे पहले निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दैट इज ऑफ इक्वल्स टू पाई आर एल। वैल्यू डालेंगे, पाई का वैल्यू 22.7 है, 3.14, तो यहां पे 3.14 डालना ज्यादा जरूरी रहेगा। R है आपका 5.25 और L है आपका L है आपका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 into 52.5 और इसका मल्टीप्लिकेशन करके जो भी आंसर आएगा दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज ऑफ योर कर्व सरफेस एरिया। सिमिलरली यू कैन फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस का फॉर्मूला है पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एल। पाई का वैल्यू 3.14 into r that is 5.25 in bracket 5.25 plus 10। l दिया है 10, स्लैंट हाइट दिया है 10। यहां पे आ गया 3.14 into 5.25 into इसका एडिशन हो जाएगा 5 plus 10 that is 15.25। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द एग्जांपल। नाउ वी विल मूव फॉर द सेकंड एग्जांपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 you have to solve। we'll take here question number 3। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। मींस यहां पे सॉल्यूशन में हम लोग लिख पाएंगे गिवन इंफॉर्मेशन दैट इज कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट मींस L is 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया। पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? रेडियस हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले से। मींस आपको फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, सो हियर फॉर द फर्स्ट सॉल्यूशन वी अप्लाई कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन is equals to pi r l। वैल्यू डाल देते हैं हम लोग। कर्व सरफेस एरिया दिया है 308 is equals to 22/7 into r जो कि नहीं दिया, l है आपका 14, 7 × 7 2 × 40। तो यहाँ पे आ गया 308 divided by 22 into 2 that is of equals to r। यहां पे देंगे 11 का डिवीजन, 11 1 सा 11 2 सा 22, ये हो गया, सॉरी इधर लिख रहा हूं 11 2 सा 22, 11 2 सा 22 बचेगा 8, बचेगा 22, 30 minus 22 that is 8 and 11 8 सा 88, 2 1 सा 2 और we can say that 2 2 सा 4 ना, 4 7 सा 28, ये 7 आ जाएगा डायरेक्टली। या फिर ऐसा भी करो 2 1 सा 2, 2 14 सा और 2 1 सा 2, 2 7 सा। सो r is equals to मिल गया आपको 7 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन
Now we find the total surface area. So for the second answer, what we consider? Total surface area of cone. You have a formula that is pi r ब्रैकेट में r plus l. पाई का वैल्यू है 22/7, r का वैल्यू है 7 ब्रैकेट में 7 प्लस l का वैल्यू है 14. So what we will get? 7 get cancel. 22 into 21 बराबर है ना 21, क्योंकि 7 4 जा सॉरी 21 4 नहीं, मल्टीप्लाई नहीं, एडिशन है. 7 plus 7 14, 14 plus 7 21, 7 plus 4 1 11, 1 carried 1, 1 plus 1 2. Now we will take the multiplication. 22 ones are 22 carried 2, 22 twos are 44, that is of equals to 46 centimeters square. Okay, so in this way you can apply the formula, correct formula, not formula, correct formula you can apply and you will solve the example. मैंने प्रीवियस वीडियो में हमने ये बोला था कि कम से कम 2 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे आपको निकालना है मैथ्स के प्रैक्टिस के लिए. then and only then you will achieve your goal regarding the subject of the mathematics. Okay, if you do not find minimum 2 hours and the maximum 3 hours from your daily routine, then you can't do anything in the subject mathematics. Okay, ऐसा दिखने में लगता है कि नहीं ये तो बहुत इजी है, मगर ये इजी तभी है जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे. Now the next example, question number 4. यहाँ पे question number 2 आपको सॉल्व करना है. Question number 1, 3 and 4 I will explain. Okay, a conical tent. A conical tent है यहाँ पे एक कोन है और ये ऐसा कोनिकल क्या है, वो टेंट है, तंबू जिसको बोलते हैं, है ना. जैसे हम लोग कहीं पे बाहर जाते हैं तो कैसे टेंट लगाते हैं, तो टेंट लगाने के लिए हमको कैनवास की जरूरत पड़ती है, कपड़े की जरूरत पड़ती है, दैट इज ऑफ इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया. अब यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो a conical tent is 10 meter high, मींस इसका हाइट दिया है 10 मीटर. ओके, and the radius of the base is 24 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस दिया है. आपको स्लाइड हाइट निकालना है और निकालना है आपको cost of canvas required to make the tent of the cost is 1 meter square as canvas is ₹70. अब कोई भी टेंट आप यूज करिए, टेंट में जो कैनवास लगता है, जो कपड़ा लगता है, वो लगता है उसके कर्व सरफेस पे लगता है. कभी भी हम लोग बेस में कैनवास नहीं लगाते, हम लोग कहां पे लगाते हैं, उसके कर्व सरफेस में लगाते हैं. तो यहां पे हमको कर्व सरफेस फाइंड आउट करना पड़ेगा और जितना भी कर्व सरफेस आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ₹70 से, तो आपको मिल जाएगा उसका कॉस्ट. ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्लैंट हाइट के बारे में सोचेंगे. हियर व्हाट इज द गिवन इंफॉर्मेशन, h is equals to 10 meter and r is equals to 24 meter. गॉट इट. अब यहां पे हमारे पास एक सबसे पहला फॉर्मूला था, L square is equals to r square plus h square. r है यहां पे 24 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 576 और ये 100, ये आ गया आपका 676 L स्क्वायर. तो L आ जाएगा आपका 26. मुझे भी पता नहीं 26 का स्क्वायर है, आपको कर सकते हो. यहाँ पे 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 plus 12 24, 24 25 26 27, यहाँ पे कैरी 2 हो गया. 2 2 जा 4 plus 2 6 बराबर है, तो यहाँ पे 676 का स्क्वायर रूट आ गया 26. गॉट इट. अब यहाँ पे L की वैल्यू आ गई 26. अब हमको चाहिए कॉस्ट ऑफ कैनवास. अब कॉस्ट ऑफ कैनवास चाहिए तो कैनवास मैंने कहा बताया था, जहां पे कर्व सरफेस है वहीं पे कैनवास अप्लाई होगा. तो पहले इसका कर्व सरफेस का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा हमको. मींस कितना कैनवास हमको यूटिलाइजेशन हो रहा है कर्व सरफेस के लिए, उतना पोर्शन हम पहले फाइंड आउट करेंगे, उतना एरिया फाइंड आउट करेंगे और उतना एरिया जो आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा. और 1 मीटर स्क्वायर के लिए रुपीस दिया है 70,
तो उतने मीटर के लिए निकालना पड़ेगा एरिया इनटू रेट, दैट इज द कॉस्ट। देयरफॉर हियर वी फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास फाइंड आउट करने के लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है पाई आर एल, बराबर डाल देंगे। ये आ गया आपका 3.14, या फिर ऐसा कर लेते हैं 22/7 डाल देता हूं, 22/7। आर की वैल्यू यहां पे अपने पास है 24, कुछ करने की जरूरत नहीं। और एल की जो वैल्यू है, ये वैल्यू आई है आपकी 26। ओके, तो यहां पे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। आपको यदि कैलकुलेशन करना ही है तो आप इसका सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और डिवाइडेड बाय 7 हम लोग एज इट इज रख सकते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। अभी आपको चाहिए कॉस्ट। नाउ द कॉस्ट ऑफ कैनवास यूज फॉर टेंट के लिए जो कैनवास यूज हो रहा है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज एरिया into rate of the canvas. Okay, now the area is given, that is we will find already 22/7 into 24 into 26 into rate दिया है यहाँ पे 70, यहाँ पे 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 7 × 7 7 10, मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे डिवीजन में जो 7 है उसको एज इट इज रखो ताकि ये कैंसिल होने वाला है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे आ गया 22 into 24 into 260, क्योंकि ये 10 है तो 260 हो गया। जो भी आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे रुपीज में आएगा। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ द एग्जाम्पल। इफ यू आर एबल टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन at your own, then you can solve it. Okay, because only one video we make for the further question, means question number 5 से लेके 8 तक एक ही वीडियो बनाएंगे हम लोग। जितने भी मेरे ख्याल से 10 एग्जाम्पल होंगे तो उसके लिए 3 एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी के जो बचे हुए एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल जो है, दैट यू हैव टू सॉल्व। अरे नेट वाचो पागल।